Hello, my dear all lovely students. Welcome back to our YouTube channel. Today I am going to conduct one test from the unit number 2nd, that is a structural organization in animal and plants, and chapter will be 7, structural organization in animal, and we are going to conduct the test number 2nd because test number 1 we have already uploaded on YouTube. Let's begin. This test will have a 20 MCQ. I will explain you one by one. Let's begin. The polysaccharide present in the matrix of a collagen, matrix of a cartilage is known as. So when you come this kind of question, अगर आपके सामने कभी भी cartilage word आता है तो देखिए chondrology ऐसे शब्द मिलेंगे आपको आंसर में. So here cartilagen is not answer. Osin is found in bone and casein is a protein found in the milk. So answer of this question is C, chondroitin. Question number 2. ATPase enzyme needed for muscle contraction is located on. तो हमने बेसिकली चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन. मायोसिन थिक प्रोटीन. तो एटीपीएस एंजाइम मायोसिन के ऊपर रोल होती है और स्लाइड होती है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग होती है. सो मायोसिन विल बी द करेक्ट आंसर विच इज़ अ थिक प्रोटीन. फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन इन्वॉल्व्स. फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन इन्वॉल्व्स. तो हमें पूछा गया कि कार्टिलेज फॉर्म होने के लिए हमें क्या ज़रूरत है. डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड रीअब्सॉर्प्शन बाय कॉन्ट्रोब्लास्ट. डिपोजिशन ऑफ अ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट एंड रीअब्सॉर्प्शन बाय कॉन्ट्रोब्लास्ट. Only deposition of bony matter by osteoblast only. Deposition of bony matter by osteoblast only. तो हमें इसका आंसर सही सिलेक्ट करना है. सो आंसर मुझे लगता है डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट ए होना चाहिए. देखते हैं हम. यस, ए इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. हैवर्शियन कैनल ओकर्स इन. हैवर्शियन कैनल occurs in. So basically Haversian canal occurs in the humerus. Haversian canal is basically the structure and functional unit of bone. So Haversian canal, I can say, it will be found in the humerus. It's a long bone. Yes. Question number 5. An example of a merocrine gland is. So what are the merocrine gland? Merocrine glands are basically the exocrine gland. Exocrine gland को explain करने के लिए merocrine शब्द भी यूज़ करते हैं. तो इसमें से sebaceous gland, pineal gland और mammary gland, ये तो तीनों endocrine gland है. बचा salivary gland. There we have a 3 pair of a salivary gland like parotid, sublingual and submandibular. 3 at the right side and 3 at the left side. So salivary gland is the correct answer. They are exocrine. Question number 6. Basement membrane is made up of. Basement membrane is made up of only epidermal cells? No. Only endodermal cell? Even though no. So A और B भी आंसर नहीं आएगा. No cell at all. But it is a product of epithelial cells. Correct. बेसमेंट मेम्ब्रेन epithelial cells का प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें एंडोडर्मल और एपिडर्मल ये दोनों नहीं आते हैं. तो डी आंसर हो जाएगा. यस. क्वेश्चन नंबर 7. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्मूथ मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप, अनब्रांच, अनस्ट्राइटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री. ये मुझे लग रहा है यही आंसर होगा. स्पिंडल शेप, अनब्रांच, अनस्ट्राइप्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री. मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं आएंगे. सिलेंड्रिकल, अनब्रांच. सिलेंड्रिकल तो नहीं, स्पिंडल शेप ही सही है. तो स्पिंडल शेप में और बी ऑप्शन है और ये ए होना चाहिए, यूनिन्यूक्लिएटेड. यस. क्वेश्चन नंबर 8. ड्यूरिंग एन इंजुरी नेसल सेप्टम गेट्स डैमेज एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रीफॉर्म्ड. सो बेसिकली अगर इंजुरी में हमारा नेसल का कार्टिलेज अगर ब्रेक हो जाता है तो हाइलिन कार्टिलेज प्रेफर्ड रहेगा जो रिकवरी कर सकता है. तो हाइलिन कार्टिलेज वहाँ पे रिकवरी करेगा. ए विल बी द करेक्ट आंसर. यस. इट वॉज वेरी इजी, देयरफॉर आई do not explain it in detail. Which cells do not form layer and remain structurally separate? Actually, see, all the epithelial cells are closely connected to each other. Muscle cells are also connected to each other. Gland cells are the type of epithelial tissue. Yes, because glands comes under the epithelial tissue, they are also well connected. Nervous cells are separated. Separated, I mean to say they do not form a layer around it.
So C will be correct answer. Yes. Question number 10. A piece of a bone such as a femur of a frog, if kept in a dilute hydrochloric acid for about a week, will what happen? अगर हमने एक फ्रॉग का फीमर बोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एक वीक तक छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अज्यूम ब्लैक कलर. क्यों ब्लैक कलर क्यों होगा? इसका कोई साइंटिफिक रीज़न ही नहीं. श्रिंक इन साइज, श्रिंक तो तब होगा जब वो एक्जोस्मोसिस कर सके, तो ये एक्जोस्मोसिस जैसी कोई सवाल ही नहीं. टर्न फ्लेक्सिबल, यस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बोन में जाता है तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बढ़ जाएगी. क्रैक इनटू पीस, नहीं. सी विल बी करेक्ट आंसर, मोस्ट एक्यूरेट. यस. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विथ अ इनवॉलेंट्री मसल? मैं जस्ट मिनट यहाँ पे फ्लाइट मोड ऑन कर देता हूँ ताकि किसी का भी कॉल नहीं आए. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विथ इनवॉलेंट्री मसल? तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिवली इनवॉलेंट्री मसल्स में आता है. मस्कुलर कोट ऑफ ब्लड वेसल्स, muscles of the duct of gland, muscles of iris, muscles of urethra. So muscles of the ducts of gland होना चाहिए, आई थिंक सो. जस्ट मिनट, फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विथ अ इनवॉलेंट्री मसल? सही है, बी आंसर होगा, मसल्स ऑफ द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड. यस. Question number 12. Histamine secreting cells are found in. So histamine is one type of a anti-allergic substance, or it is produced from the mast cell, and mast cell belongs to the areolar connective tissue. So connective tissue will be correct answer. Yes. कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी. अगर हम ब्लड में देखें तो WBC में जो लिम्फोसाइट होते हैं, तो लिम्फोसाइट के दो प्रकार होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बट यहाँ पे टी और बी नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली लिम्फोसाइट आएगा. थ्रोम्बोसाइट्स आर प्लेटिलेट, मोनोसाइट्स आर द टाइप ऑफ अग्रेन्युलोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स आर द RBC, एंड लिम्फोसाइट आर ऑल्सो टाइप ऑफ अग्रेन्युलोसाइट, बट लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी. लिम्फोसाइट सही आंसर होगा. यस. विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर. विटामिन के जनरली ब्लड क्लोटिंग में काम में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या एग्जैक्टली क्या रोल है उसका? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, नो. कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजेन टू फाइब्रिन, नो. कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ये भी नहीं है. तो इसका आंसर आ जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. यस. क्वेश्चन नंबर 15. एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन. तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल सरफेस पे नहीं, वो तो सिर्फ RBC के ऊपर होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप पे. सेल साइटोप्लाज्म, नो. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस. तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही आंसर आ जाएगा. द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्राइटेड मसल इज. सो फंक्शनल यूनिट ऑफ अ contractile system in striated muscle is. So इसका आंसर आ जाएगा B, sarcomere, because sarcomere is nothing but structure and functional unit of a muscle fiber. Even though sarco का muscle से काफ़ी रिलेशन है. जस्ट लाइक हम जब माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं तो जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं तो मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोमेरिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्लेस बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So sarcomere is structure and functional unit of muscle fiber. 17 number. Stratum germinativum is an example of which kind of epithelial? Stratum germinativum is an example of which kind of epithelial? Cuboidal, ciliated, columnar, squamous. वो columnar type के example में आते हैं. Yes. Question number 18. Epithelial tissue with a flat cells appearing like पैक टाइल्स ओकर्स. ये जो सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अगर इपिथेलियल सेल्स को एक जैसे ही रख दिया तो टाइल्स के जैसे अरेंज करेंगे तो वो होते हैं स्क्वीमस इपिथेलियल टिश्यू. और यहाँ पे हमें पूछा गया एग्जांपल क्या होगा उसका, तो उसका होगा इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी. क्वेश्चन नंबर 19. मिनरल फाउंड इन रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट. रेड पिगमेंट मीन्स
हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन, बिकॉज हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन ये, हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, रेड इन कलर. Last question. Simple epithelium is a type of, is a tissue in which the cells are. तो इसके अंदर जो हार्डन एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द organ. एक मिनट. Simple epithelium is a tissue in which cells are hardened and provided support to the organ. No. Cemented directly to one another and form a single layer. ये करेक्ट हो सकता है. एक मिनट. Continuously dividing to provide form. नहीं. लूजली कनेक्टेड टू वन अनदर टू फॉर्म अ इरेगुलर ऑर्गन. इरेगुलर ऑर्गन बनाना ही क्यों है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा. यस. सो गाइस, वी हैव गिवन 20 आउट ऑफ 20 आंसर एंड वी हैव गिवन 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट आंसर. रॉन्ग आंसर वी हैव गिवन नन, and time taken by the conducting test is 10 minutes and 19 seconds. So thank you so much guys for watching this video. Please subscribe to our channel, press the bell icon and share this video with your friends so that they can also take advantage of this test. Have a good day.